ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گھر میں بہت غربت تھی۔ ہمارے اکلوتے بیٹے کا انتقال علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کے 2 دن بعد بیوی بولی اب ہم غریب نہیں رہیں گے۔ یوں وہ آن لائن نوکری کرنے لگے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی کیونکہ جب سے بیوی نے آن لائن کام شروع کیا تھا وہ کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاتی تھی۔ وہ لاکھوں کماتی۔ اب اسی کے پیسوں سے میں نے کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ایک دن بیوی نقاب لگا کر آئی، پر غلطی سے اس کا نقاب کھل گیا۔ قیامت تو تب ٹوٹی جب سب اسے ہماری بستی میں صبح کا آغاز ردی دینے والے کی آواز پر ہوتا تھا، مگر میں ڈھٹائی سے سوتا رہتا۔ جب اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تو مجھے ناچار اٹھنا پڑتا، کیونکہ اگر ردی نہ بیچتے تو کہاں سے صبح کو کھانا کھاتے۔ میں اور اماں سارا دن اور آدھی رات تک سڑکوں سے کاغذ چن کر ردی بناتے اور پھر اگلی صبح ردی والے کو بیچ کر گزر بسر کرتے۔ ردی والا کچھ دیر کے لیے ہماری بستی میں رکتا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا، مگر وہ ہمیشہ ناپ تول میں فرق کرتا تھا۔ اکثر زیادہ پیسے بنتے تھے مگر وہ کم دیا کرتا تھا۔ اس کی بددیانتی پر میرا دل کڑتا تھا، مگر ہماری بستی میں اس کے علاوہ کوئی اور ردی والا نہ آتا تھا، اس لیے مجبوری میں جو پیسے ملتے اس پر اکتفا کرنا پڑتا تھا۔ جب میں پیسے لے کر جھونپڑی میں داخل ہوا تو اماں نے فوری میرے ہاتھوں سے پیسے جھپٹ لیے۔ جب انہوں نے پیسے گنے تو ہمیشہ کی طرح کم پیسے تھے۔ انہوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج بھی اس نے کم پیسے دیے ہیں۔ اماں نے ہنکار بھرا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ردی والا ہم غریبوں کا حق مار کر کہاں تک جائے گا، ایک دن خدا کی عدالت میں جواب دہ ہوگا۔ پھر اماں قریبی دکان سے جا کر کھانے کی چیزیں لے کر آئیں اور صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ہم دونوں تھیلا اٹھا کر سڑکوں کی خاک چھانتے رہے۔ جب دوپہر ہوئی تو تیز گرمی کی وجہ سے ہم دونوں سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ اماں اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر ابا زندہ ہوتا تو ہم دونوں کو ایسے کمانے کی ضرورت نہ تھی۔ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ہم اپنے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھی بھر رہے ہوتے۔ اچھا ہے کہ وہ مر گیا، ورنہ وہ ہم پر بوجھ بنا رہتا۔ جب تو پیدا ہونے والا تھا تو تیرا باپ گھبرا گیا کہ ایک اور انسان کا پیٹ بھرنا پڑے گا۔ مجھے اماں کے منہ سے ایسی سخت باتیں سن کر حیرانی ہوئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ غربت انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، انسان کے اندر سے خوبصورتی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اس کے احساسات اور جذبات کو کچل کر صرف پیٹ بھرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اماں نے میری طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تو ایسی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ مجھے تیری باتیں سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ تو نے میرے ذہن میں پنپنے والی سوچ کو کچل کر رکھ دیا۔ میں نے تو ابا کو دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ اماں کے چہرے پر پشیمانی واضح ہوئی۔ انہوں نے اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے مجھے کہا کہ چل اٹھ اب چلتے ہیں، کافی دیر سے یہاں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اماں کو کاغذوں کا بہت بڑا ڈھیر نظر آیا تو ہم دونوں اس کی جانب بڑھ گئے، وہاں سے بہت سارے کاغذوں کو چنا، اس کے بعد اپنی جھونپڑی کی طرف چلے گئے کیونکہ اماں بہت تھکی ہوئی تھیں۔ جب ہم جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں پر کوہرام مچا ہوا تھا کیونکہ میرے چچا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ سب لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ جب میں وہاں پر بھاگ کر پہنچا تو چچا کا وجود بالکل ساکت تھا، وہ فوت ہو چکے تھے۔ ان کی بیٹی ریشما نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سب لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر چچا کے لیے کفن کا انتظام کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ غریب آدمی مرنے کے بعد امیر کا مقابلہ کر سکتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی کفن میں لپیٹے جاتے ہیں۔ چچا کو دفنانے کے بعد سب لوگ بستی میں واپس آئے تو ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب لوگ ریشما کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ لڑکی اکیلی ہو گئی ہے، اس کا واحد سہارا اس کا باپ وہ بھی مر گیا ہے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دو، تمہارے دیور کی بیٹی ہے، اس کو بہو بنا کر اپنی جھونپڑی میں ساتھ لے جاؤ کیونکہ اس کا اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ اماں کو ریشما پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے فوری طور پر تمام لوگوں کی بات مان لی۔ اسی وقت ایک جھونپڑی میں رہنے والے مولوی کے پاس سب لوگ جمع ہو گئے اور میرا اور ریشما کا نکاح مولوی صاحب نے پڑھایا۔ نکاح کے عہد و پیمان کے بعد میں اور اماں ریشما کو اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے آئے۔ اماں اس تمام کارروائی پر گھبرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے اماں کو پانی بھر کر دیا اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور ریشما بیچاری ایک طرف دبکی بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا کیونکہ ہم غریبوں کے پاس دکھ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ اگلی صبح ریشما بھی ہم دونوں کے ساتھ کاغذ چننے کے لیے تیار تھی، مگر میں نے اس سے منع کر دیا۔
और झोंपड़ी में रहने को कहा। इस बात पर अम्मा बिगड़ गईं। उन्होंने कहा कि हम दोनों इतनी मुश्किल से कागज़ चुनकर गुजर बसर करते हैं, इसे भी हमारे साथ कागज़ चुनने का काम करना होगा। हम दोनों इसका बोझ नहीं उठा सकते हैं, इससे अपना बोझ खुद उठाना होगा। अम्मा की इतनी तलख कलामी के बाद मैंने रेशमा से कुछ न कहा और वो भी अपना थैला उठाकर हमारे साथ कागज़ चुनने के लिए चल पड़ी। सारा दिन ख्वार होने के बाद जब हमारे थैले कागज़ों से भर गए तो मैंने अम्मी से कहा कि हम ये कागज़ यहाँ किसी और रद्दी वाले को बेचते हैं। उन्हें मेरी बात पसंद आई और वो अपने फटे हुए जूते उतार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और रेशमा भी थकी हारी उनके साथ टिक गई। मैं जब दूसरी रद्दी वाले को कागज़ देने गया तो उसने काफ़ी अच्छे पैसे दे दिए। जब मैं पैसे लेकर अम्मा के पास आया तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि ये सब रेशमा की वजह से है। इसके कदम हमारी झोंपड़ी में पड़े हैं तो आज रद्दी के अच्छे पैसे मिल गए। उन्होंने रेशमा को प्यार किया तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे वो मुस्कुराते हुए अच्छी लगी क्योंकि रात से तो मैंने उसे रोते हुए ही देखा था। फिर अम्मा ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और कहा कि करीबी छोटे से बाजार से अपनी बीवी को कुछ ज़रूरत का सामान खरीद के ला दो, बेचारी खुश हो जाएगी। रेशमा ने बहुत मना किया मगर अम्मा ने उसकी एक ना सुनी और उसको ज़बरदस्ती मेरे साथ भेज दिया। मैंने उसको ज़रूरत का सामान खरीद कर दिया तो सामने से मुझे कुल्फ़ी वाला आता हुआ दिखाई दिया। गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ रही थी तो मैंने रेशमा को खुश करने के लिए उसकी पसंद की माल्टे वाली कुल्फ़ी खरीदी और एक अम्मा के लिए भी ले ली। और फिर हम दोनों दरख्त के नीचे अम्मा के पास चले गए और मैंने जब ठंडी कुल्फ़ी अम्मा की तरफ बढ़ाई तो उसने खुशी से थाम ली और जल्दी जल्दी खाने लगी क्योंकि सख्त गर्मी होने की वजह से कुल्फ़ी पिघल रही थी। रेशमा ने आधी कुल्फ़ी खाकर मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने खामोशी से कुल्फ़ी खाना शुरू कर दी। फिर रात तक हम लोग कागज़ चुनते रहे और उसके बाद झोंपड़ी में सस्ताने की गर्ज से चले गए। अगली सुबह जब रद्दी वाला आया तो मैंने उससे रद्दी ना बेची बल्कि शहर में दूसरे रद्दी वाले को बेचने का फैसला किया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। इसमें तब्दीली ये हुई कि रेशमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अम्मा इसकी हालत की वजह से उसे अपने साथ कागज़ चुनने के लिए ना लेकर जाती क्योंकि अम्मा को वो कमज़ोर महसूस होती थी। अम्मा मेरी औलाद के लिए बहुत खुश थी। इसी खुशी में वो एक दिन का कागज़ चुनते हुए सड़क के दरमियान में पहुंच गई। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई लेकिन ट्रैफिक के शोर की वजह से उसने मेरी एक ना सुनी और जब तक मैं उसके करीब पहुंचता वो एक ट्रक का निशाना बन चुकी थी। ट्रक वाला अम्मा को टक्कर मारने के बाद भाग गया था। मैंने अम्मा का सर अपनी गोद में रखा तो वो खून में लथपथ थी। मैंने उनको होश में लाने की बहुत कोशिश की मगर उनका वजूद साकित हो गया और अम्मा अपने खाल के हकीकी से जा मिली। मुझे किसी चीज़ का कोई होश ना रहा, यहाँ तक कि मुझे कागज़ों से भरे हुए थैले भी नजर न आए। मैं अम्मा के बेजान वजूद को उठाकर अपनी झोंपड़ी में लाया। अम्मा की मौत पर मेरी आंखों से एक आंसू न निकला क्योंकि मरने के बाद ही हम गरीब लोग गुर्बत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अम्मा को मनोमटी तले दफनाने के बाद जब मैं झोंपड़ी में आया तो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, जिस पर रेशमा ने मुझे बहुत दिलासा दिया। मुझे हर वक्त अरमान लगा रहता था। अम्मा मेरी औलाद की खुशी देखे बगैर ही इस दुनिया से चले गईं। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो वो हूबहू अम्मा की शक्ल देता था। मुझे ऐसे लगा कि अम्मा मेरे पास मेरे बेटे की सूरत में वापस आ गई हों। मैं अपने बेटे के साथ हर वक्त प्यार करता रहता था। एक दिन अचानक से मेरे नौमौलूद बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। जब मैंने बेटे के मुतल्लिक रेशमा से दरियाफ्त किया तो उसने मुझे बताया कि इसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। तुम सुबह से शाम तक कागज़ चुनते रहते हो जिसकी वजह से मैं तुम्हें बता ना पाई। आज तुम घर पर हो तो तुम्हें इसकी तबीयत के बारे में पता चला। जब मैंने बीवी की बात सुनी तो मैं उसे दाई के पास ले गया। उसने मुझे कहा कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तुम्हारे बेटे की बीमारी समझ में नहीं आती है, इसको सरकारी अस्पताल लेकर जाओ, क्योंकि जब मैंने इसको पैदा किया था मुझे इसके बीमार होने का अंदेशा था, लेकिन मुझे इसका मुआयना करने के बाद बीमारी की समझ ना आई। मैं तुम्हें कोई दवा दे देती हूँ, हो सकता है तुम्हारे बेटे की तबीयत संभल जाए, लेकिन इसको अस्पताल लेकर जाना ज़रूरी है। उन्होंने इधर उधर देखते हुए मुझे थोड़ा सा करीब होने को कहा। जब मैं हैरत के आलम में उनके करीब हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उसने मुझे बताया कि जब तुम्हारे बेटे की पैदाइश हुई थी तो उसके दौरान तुम्हारी बीवी के अंदर कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती है। दाई की बात सुनने के बाद मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं अपने बेटे को उठाकर मुर्दा कदमों से झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। जब झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो रेशमा मेरी मुंतज़िर थी। उसने मेरे हाथों से रोते हुए बेटे को लेकर अपने साथ लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगी। मैंने दाई की तरफ से दी गई दवाई की शीशी रेशमा की तरफ बढ़ाई। दवाई लेने की वजह से बेटे की तबीयत में चंद दिन बहुत फ़र्क पड़ा।
फिर दोबारा से मेरे बेटे की वही हालत होना शुरू हो गई। रेशमा ने मुझे कहा कि दवाई दाई से जाकर बदलवा लो। मैंने उसे कहा कि दाई ने कहा था कि अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में ले जाओ, क्योंकि इसे हमारे बेटे की बीमारी समझ में नहीं आती। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा। उसने कहा कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम बेटे को अस्पताल ले जाएं। उसने रोना शुरू कर दिया। मेरे पास उसे तसल्ली देने के लिए भी अल्फाज न थे। मैं उसको इतने दिनों बाद ये भी नहीं बता पाया था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसे दुखी देखने की हिम्मत मुझ में न थी। एक दिन मुझे कागज़ चुनने के अच्छे पैसे मिल गए तो मुझे बेटे का ख्याल आया, तो मैं जल्दी से झोंपड़ी की तरफ गया और अपनी बीवी को लेकर सरकारी अस्पताल चल पड़ा। वहाँ जाकर बेटे का मुआयना बड़े डॉक्टर से करवाया तो पता चला कि मेरे बेटे को पैदा होते ही सफ़ेद खून की कमी थी, जो कि सुर्ख खून के साथ होता है। अगर मैं बेटे को सफ़ेद खून की बोतलें ना लगवाता तो इसकी ज़िंदगी खतरे में थी। डॉक्टर ने मुझे उसके इलाज के लिए बहुत खर्चा बता दिया, जो कि मुझ गरीब की सकत में न था। मैं डॉक्टर की बात सुनने के बाद वहाँ से निकलकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। रेशमा ने मेरा कंधा हिलाते हुए कहा कि अब हम बेटे का इलाज कैसे करवाएंगे? डॉक्टर ने तो बहुत खर्चा बता दिया है, क्या हमारा बेटा कभी ठीक नहीं हो पाएगा? मैंने उसकी आंखों में बेटे के लिए बेबसी देखी। उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब न था। मैं खामोशी से दरख्त के एक पत्ते को तक रहा था, जो कि दरख्त से उतरकर अपनी मौत मरकर ज़मीन पर गिरा हुआ था और पता नहीं कितने लोगों के नीचे आकर कुचलता जा रहा था। मुझे हम गरीबों की ज़िंदगी भी ऐसे पत्ते की मानद लग रही थी, जिनको गुर्बत की चक्की कुचलती जा रही थी। रेशमा ने मेरा कंधा पकड़कर ज़ोर से हिलाया तो मैं सोचों की दुनिया से वापस आया और हम दोनों झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। हमारे पास बेटे की बेबसी देखने के अलावा कोई और चारा न था। जब 2 साल गुजरे तो हमारे बेटे की हालत बदतर होती जा रही थी। वक्ती दवाई से उसको आराम आ जाता था, फिर वही हालत हो जाती। मुझसे बेटे की हालत देखी ना जाती थी, मगर गुर्बत की वजह से 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाती थी, यही काफ़ी था। एक दिन बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मेरी बीवी ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। मैं बेटे को गोद में लिए बैठा था कि अचानक से उसके जिस्म ने झटके लेने शुरू कर दिए। मुझे उसकी हालत देखकर कुछ समझ ना आ रहा था और फिर अचानक से उसका वजूद साकित हो गया। मेरी इकलौती औलाद भी मुझे अम्मा की तरह इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गई। मुझे तो इसके नाज उठाने थे, लेकिन मेरी गुर्बत उसकी जान ले गई। घर में बहुत गुर्बत थी। हमारे इकलौते बेटे का इंतकाल इलाज के पैसे ना होने की वजह से हो गया। इसके 2 दिन बाद बीवी बोली, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। यूँ वो ऑनलाइन नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती, क्योंकि जब से बीवी ने ऑनलाइन काम शुरू किया था वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी। वो लाखों कमाती। अब उसी के पैसों से मैंने कारोबार शुरू कर दिया था। एक दिन बीवी नकाब लगा कर आई, पर गलती से उसका नकाब खुल गया। क़यामत तो तब टूटी जब मैंने उसका चेहरा देखा। मुझे लगा कि वो मेरी नज़र का धोखा है, मगर वो हकीकत पर मबनी तस्वीर मेरे सामने थी। उसके चेहरे के नकूश बिल्कुल बदले हुए थे। मेरी बीवी के बाल कंधों तक कटे हुए थे। उसने आईब्रो में छेद करवा कर छल्ले डाले हुए थे, पर चेहरे की दाईं साइड पर कट लगा हुआ था, जिस पर टांकों का निशान था। उसने अपनी हालत बिल्कुल तब्दील की हुई थी। जब उसे अपने नकाब खुलने का एहसास हुआ तो उसने फौरी तौर पर अपना चेहरा ढांप लिया और मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने कागज़ों को चुनने के बाद जितने पैसे इकट्ठे किए थे वो सब मैंने अपनी बीवी रेशमा को दे दिए। तो उसने बेटे के इंतकाल के बाद एक मोबाइल ख़रीदा और फिर ऑनलाइन काम करने लगी, जिससे हमारे वारे नियारे हो गए। पैसों की चकाचौंध देखकर मैं रेशमा से ये पूछना भी भूल गया कि वो इतने पैसे कहाँ से कमाती है। उसने मुझसे पर्दा कर लिया तो मैंने गौर भी न किया, क्योंकि मैं भी गुर्बत में नहीं रहना चाहता था। इसलिए सारा ध्यान कारोबार की तरफ लगा दिया और अपनी बीवी से गाफिल हो गया कि वो क्या करती है जिससे इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया। मेरा जहन शल हो रहा था। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी बीवी ने खुद को इतनी तकलीफ क्यों दी, ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। इसका जवाब तो सिर्फ मेरी बीवी दे सकती थी। मैंने रेशमा से बात करने का फैसला किया और कमरे की जानिब बढ़ गया, मगर जैसे मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मेरे मोबाइल फ़ोन पर कॉल आने लगी। मैंने रुककर कॉल अटेंड की और जो खबर मुझे मिली उसने मुझे रेशमा से मुतल्लिक सब कुछ भुला दिया। मुझे मेरे ऑफिस से फ़ोन आया था। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे साथ कारोबार करने के लिए राज़ी है। अगर ये मुआहिदा हो जाता तो मेरा कारोबार मज़ीद बढ़ जाता। मेरे मैनेजर ने मुझे जल्दी ऑफिस आने के लिए कहा। मैं सब कुछ भुलाए ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सब लोग वहां पर जमा थे।
इन लोगों ने मेरे साथ मुआहिदा पक्का कर लिया। मैं इतना ज़्यादा खुश था कि तमाम काम करने वाले लोगों में खाना मुफ्त तकसीम करवाया और कुछ खाने की देगे बनवाकर जहाँ झोंपड़ी वाले रहते थे वहाँ चला गया और इन लोगों में खाना तकसीम किया और इनसे कहा कि वो मेरे ऑफिस में आकर काम कर सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने मुझे रश्क की निगाह से देखा और कुछ ने हसद से तंज के जुमले कसे। वहाँ बस्ती वालों ने कहा कि तुमने कोई डाका डाला है या किसी बैंक की चोरी चकारी की है जो इतनी जल्दी अमीर हो गए। मुझे इन लोगों की बातें अजीब लगी, इसलिए मैंने वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना मुनासिब न समझा और घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैं बहुत थका हुआ था, मगर मेरे जहन में रेशमा से मुतल्लिक झमाका हुआ। मैं फौरी तौर पर उसके कमरे की जानिब बढ़ा। मुझे उससे सब जानना था। मैं उसके कमरे के करीब पहुंचा तो कमरे से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम रोके। वो किसी औरत से बात कर रही थी, वो भी इतने मशकूक अंदाज में कि उसने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद किया हुआ था। मैंने 2-3 बार लॉक खोलने की कोशिश की, मगर मुझसे दरवाज़ा न खुला, तो मैंने दरवाज़ा अनलॉक करने की बजाय ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बावजूद दरवाज़ा न खोला गया, तो मैंने बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर उससे कहा कि मुझे पता है तुम अंदर मौजूद हो, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मेरी धमकी कारआमद साबित हुई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। वो औरत भी नकाब में थी, जो मुझे देखते ही फ़ौरन मेरे सामने से निकल गई। मुझे उसकी तेज़ी पर ताज्जुब हुआ। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो रेशमा मुझे घबराई हुई लगी। मैंने उससे पूछा कि तुमने इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खोला और ये औरत कौन थी जो मुझे देखते ही बिजली की तेज़ी से चली गई। रेशमा ने मेरी किसी बात का जवाब न दिया और बेड पर बैठ गई। मैं उसके सरापे को देख रहा था कि उसका जिस्म और हाथ कांप रहे थे। मुझे उसकी हालत पर तरस आया तो मैंने अपना रवैया नॉर्मल किया और उसके साथ बैठ गया। मैंने उसके हाथ पर अपना प्यार भरा लमस छोड़ा और उसके हाथ थामते हुए तसल्ली करवाई कि मैं तुम्हारा शरीके सफ़र हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो? उसने परेशानी के आलम में मेरी बात का जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, जिसकी वजह से मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरी तमाम हकीकत जानने के बाद मुझे माफ़ कर दोगे। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत हुई कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बताते हुए तुम परेशान हो रही हो। तो उसने अपना नकाब खोल दिया और उसका चेहरा मेरे सामने नमूदार हुआ। उसके निशान को देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने अपनी आंखें उस वक्त खोली जब उसकी सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा कि मुझे मेरे बेटी की मौत का बहुत सदमा हुआ था, मुझसे रहा ना गया, तो मैंने दिल में अमीर होने का इरादा कर लिया। जब तुम एक दिन कागज़ चुनने के लिए गए, एक औरत मेरे पास झोंपड़ी में आई। उसने मुझे कहा कि तुम कब तक इस गुर्बत में ज़िंदगी गुजारोगे? तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरे पास तुम्हारे लिए ऑनलाइन काम है जिसके लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम बहुत सारा पैसा कमाने लगोगी और तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगी। उसने कहा कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें एक दरख्त के नीचे किसी औरत के साथ बैठे हुए देखा था। तुम्हें इतनी खूबसूरती के ज़रिए से पैसे कमाने चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल होना ज़रूरी है और फिर उसने अपने परस से एक मोबाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया और मुझसे इसकी कीमत मांगी। तो मैंने वो सारे पैसे दे दिए जो तुमने मुझे दिए थे। तो इसने मुझे मोबाइल पर टिकटॉक ऐप के बारे में बताया, जहाँ पर वीडियो बनाकर डाली जाती हैं, जिसके ज़रिए से बहुत सारा पैसा मिलता है। उसने कहा कि जब तुम टिकटॉक पर मशहूर हो जाओगी तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। मुझे उसकी बात बुरी लगी तो मैं उसकी बात मानते हुए वीडियो टिकटॉक पर बनाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि वीडियो के ज़रिए पैसे कमाने के लिए तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। मुझे उसकी बात अजीब लगी, मगर उसने कहा कि अमीर बनने के लिए तुम्हें जो कुछ मैं कहूँगी वो मानना पड़ेगा। मुझे गुर्बत में ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी, तो मैंने उसकी बात मान ली और वो मुझे पार्लर पे ले गई। उसने मेरे खूबसूरत लंबे बाल कटवा दिए। उसने मेरे चेहरे की खराश तराश करवाने के बाद मेरे आईब्रो में छल्ले डलवा दिए और मेरे दाएं गाल पर कट लगवाया, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, मगर टाँके लगवाने के बाद मुझे सुकून मिल गया। बस अमीर होने की धुन सवार थी। वो औरत मुझे जो कहती थी मैं उसकी मानती गई। जब उसने मेरा हुलिया बिल्कुल तब्दील करवा दिया तो उसने मुझे शीशे में देखने को कहा। जब मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा तो हैरान रह गई। मैंने उस औरत से कहा कि तुमने मेरा चेहरा क्यों बदल दिया? उसने कहा कि ये वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी था। अगर तुम अमीर बनना चाहती हो तो ये सब करना पड़ेगा। मुझ पर अमीरी की धुन सवार थी, जिस वजह से मैं इसकी बात मानती गई। मैंने उससे कहा कि मैं ये चेहरा लेकर शौहर के सामने नहीं जा सकती, तो उसने मुझे हर वक्त नकाब में रहने का मशवरा दिया।
मुझे इसकी ये बात भली लगी तो मैंने उस पर अमल करने का फैसला किया। यही वजह थी कि मैं तुमसे पर्दा करने लगी। तुम भी कारोबार के सिलसिले में मसरूफ हो गए। मेरी इस तब्दीली पर गौर न किया। जब उसने मेरी पहली बार वीडियो बनाई तो उसने मेरे सामने अकाउंट बनाया और उस पर वीडियो डाल दी। मेरी वीडियो बनाने के दौरान उसने कुछ ऐसे नाजेबा काम नहीं किया था कि जिस पर मुझे शर्मिंदगी होती, और मुझे ये काम अच्छा लगा क्योंकि एक वीडियो बनवाने के मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे। उसने मुझे बताया कि अगर लोगों ने तुम्हारी वीडियो पसंद करना शुरू कर दी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जो वीडियो उसने टिकटॉक ऐप पर डाली उसको लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। मेरा चेहरा बदलने की वजह से किसी को मेरी असलियत के बारे में मालूम भी ना हो पाया कि मैं झोंपड़ी में रहने वाली काम सी लड़की हूँ। इस औरत ने मेरी कुछ वीडियोस और भी बनाई जिसको लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इस औरत ने मुझे लाखों रुपए देना शुरू कर दिए। अक्सर मुझे वीडियो बनवाना अच्छा न लगता था। ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई गलत हरकतें करवाती थी, बल्कि वो तहजीबदार वीडियोस बनवाती और मुझे दिखाने के बाद इस ऐप पर लगा देती। काम तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल इखलाकी दायरे के अंदर, मगर उसने जो हिलिया मेरा तब्दील किया था वो मुझे न भाता था, क्योंकि हमारे इस्लाम में नेक बीबियों के लंबे बालों के बारे में जिक्र किया गया है कि उन्होंने करबला के मैदान में लंबे बालों से अपने चेहरे ढक लिए थे। मुझे लगा कि मैंने बाल कटवाकर इस्लाम में बताए गए असूलों के खिलाफ वर्जी की हो। चेहरे के नकूश कट लगवाने की वजह से बदल कर रह के मुझे ये बात बार बार एहसास दिलाती थी कि खुदा ने मुझे खूबसूरत बनाया हो तो मैं कौन होती हूँ इसकी बनाई हुई चीज़ में रद्दो बदल करवाने वाली। और ये आईब्रो में जो छेद हुआ है ये मुझे तकलीफ़ देता है। जब मैं खुदा की बनाई हुई खूबसूरती में छेद करूँगी तो तकलीफ़ से दो चार होना पड़ेगा। मैंने गुर्बत से छुटकारा हासिल करने के लिए ये सब कुछ करवा तो लिया था, मगर ये मुझे अंदर ही अंदर मारता रहता। ये एहसास मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। ये एहसास तो गुर्बत में ज़िंदा रहने के उस एहसास से भी बढ़कर है। इसने मेरे गले लगकर धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। मेरे पास उसे दिलासा देने के लिए अल्फाज न थे, क्योंकि मैं उसका शौहर था। मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था, उसे अच्छे बुरे के बारे में बताना चाहिए था, मगर मैं तो कारोबार करने की धुन में मगन हो गया। पैसों की चकाचौंध ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। मुझसे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। उसने कहा कि मैं इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मुझे लगता है कि अगर मैं ये सब सहती रही तो मेरी जान फना हो जाएगी। मैंने उसे अपने साथ लगाकर दिलासा दिया। मैंने उससे कहा कि तुम हौसला करो, मुझे इस औरत से मिलना है। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा और कहा कि तुम इस औरत से मिलकर क्या करोगे। मैंने कहा कि मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने मेरी बात मानते हुए जल्दी से इस औरत को फ़ोन किया और उसे अपने घर जल्दी आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो इस औरत को सामने खड़े पाया, मगर वो नकाब में ना थी तो मैं इसे पहचान ना पाया। उसके आने की वजह दरियाफ्त करने लगा। रेशमा ने मुझे आकर इसके बारे में बताया तो मैंने औरत को अंदर आने का रास्ता दिया और उसको रेशमा की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो इस ऑनलाइन नौकरी से मुतल्लिक क्या एहसासात रखती है, जिसकी वजह से वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई। जो इंसान दीन के दायरे को नहीं समझता वो अक्सर ऐसे ही शर्मिंदा होता है। उसने कहा कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने उसके इस इस्तफसार पर कहा कि मेरी बीवी की वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि इसको ये काम अच्छा नहीं लग रहा। उससे नादानी में ये गलती हो गई है, मगर अब वो इस हरकत पर पशेमा है और जिस पर उसका अकाउंट बनाया है और जहाँ पर तमाम की तमाम वीडियोस डालती रही हो उन सब को ख़त्म कर दो और ये सब तुम मेरी बीवी के सामने करो, जिससे उसके दिल को सुकून मिल जाए और वो इस बात पर मुतमईन हो जाए कि उसे क़यामत के दिन खुदा के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो मेरी तमाम बातों को मान गई, क्योंकि उससे भी रेशमा की हालत से मुतल्लिक एहसास हो गया और उसने तमाम काम मेरी बीवी के सामने सरअंजाम दिए और उसने मुकम्मल तसल्ली करवाने के बाद मेरी बीवी को पुरसकून रहने का मशवरा दिया। मैंने उसकी इल्तिजा करते हुए कहा कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरी बीवी का चेहरा पहली हालत में वापस आ जाए। उसने अपना पेशा वराना अंदाज में मुझे कायल करने की कोशिश की कि रेशमा को टिकटॉक ऐप पर काम करना चाहिए, मगर मैं टस से मस ना हुआ। जब उसने मुझे मेरे फैसले पर अटल देखा तो उसने कहा कि चेहरा सर्जरी के ज़रिए से बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसने मुझे सर्जरी से मुतल्लिक मालूमात दे दी और उस पर बनाए गए तमाम अकाउंट ख़त्म करने के बाद उसने रेशमा से माफ़ी मांगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई थी। उसने रेशमा से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं शैतान के बहकावे में आ गई, मगर अब मुझे समझ आ गई है। फिर वो चली गई। मैंने अगले दिन रेशमा को डॉक्टर के पास ले जाने का फ़ैसला किया। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने पुरसरार नज़रों से रेशमा के चेहरे का मुआयना किया। वो मुझसे चेहरे पर लगे हुए कट के बारे में सवालात करने लगा तो मैंने उसे टाल मटोल से जवाब दिया।
फिर डॉक्टर ने मुझे कामयाब सर्जरी के जरिए रेशमा के चेहरे के बिल्कुल ठीक हो जाने के बारे में खुशखबरी सुनाई। रेशमा को भी सुकून हासिल हुआ कि उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। डॉक्टर ने फौरी सर्जरी का इंतज़ाम किया और मुझे सर्जरी के खर्चे के बारे में बताने के बाद काउंटर पर पैसे जमा करवाने के लिए कहा। मुझे नए कारोबार की वजह से मुनाफा हुआ तो मैंने वो पैसा रेशमा की सर्जरी पर लगा दिया, और डॉक्टर ने जब मुझे सर्जरी के कामयाब होने की खबर सुनाई तो मेरे दिल को सुकून महसूस हुआ और मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी के चेहरे की पट्टियाँ 1 हफ्ते के बाद खुल जाएंगी। मैं पूरा 1 हफ्ता इंतज़ार करता रहा। इस 1 हफ्ते में मैंने रेशमा का बहुत ख्याल रखा और उसको तसल्ली देता रहा। जिस दिन रेशमा के चेहरे की पट्टियाँ खोली गईं तो उसका चेहरा बिल्कुल पहले की तरह हो गया। अस्पताल में डॉक्टर की तरफ से बताई गई ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और रेशमा को 1 हफ्ते बाद घर वापस लेकर आया। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके बाल भी लंबे हो गए। वो अपने लंबे बालों को देखकर खुश होने लगी कि वो वापस आ गए हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे खुदा ने मुझ पर एहसान किया हो। मैं इसके बच्चों जैसी बातें सुनकर मुस्कुरा देता, मगर उसको अपनी नादानी का एहसास बार बार कचोके लगाता था। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं अल्लाह के घर जाकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वहाँ जाकर अपने खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी तो हो सकता है कि मुझ जैसी गुनहगार बंदी की दुआ को मेरा खुदा सुन ले। मुझे उसकी बात भली लगी। अगर मेरी बीवी के दिल को ऐसे ही सुकून मुयस्सर होता था तो मुझे उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए था। मेरा कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था। मैंने एक और जगह भी मुआहिदा किया जहाँ से मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हासिल हुआ, तो मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी एक दोस्त से सऊदी अरब जाने के लिए टिकट का बंदोबस्त करने को कहा, तो उसने बहुत जल्द टिकट का इंतज़ाम करवा दिया। मगर मैंने उसके बारे में रेशमा को कुछ ना बताया था। जब मैंने रेशमा को सऊदी अरब जाने की टिकट दिखाई तो वो खुशी से रोने लगी। उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सऊदी अरब जाऊंगी, लेकिन मेरे खुदा ने मुझ जैसी गुनहगार बंदी को इस टिकट की सूरत में अपने घर आने की इजाज़त दे दी है। मैं अल्लाह के घर जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा 70 माओं जैसा शफीक है। वो मुझे ज़रूर माफ़ करेगा और मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। उसने टिकट की तरफ देखते हुए मेरे कंधे पर सर रखा और आंखें मूंद लीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।